اور آپ کو بتائیں کہ گیس کی قیمت میں اضافے پر صنعتکاروں نے پہلے مرحلے میں ٹوکن ہڑتال کی دھمکی دے دی۔ ہڑتال کی تاریخ کا اعلان اگلی پریس کانفرنس میں ہوگا۔ پریس کانفرنس میں صنعتکاروں کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ایکسپورٹ 16.5% گر گئی۔ ٹیکس دینے کے باوجود انفراسٹرکچر تباہ حال ہے۔ چھوٹی صنعتیں شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ گیس اور بجلی کے مسائل کا فوری حل نکالا جائے۔ انڈسٹری بند ہونے سے پہلے ہم سے بیٹھ کر بات کی جائے۔ کراچی کی انڈسٹری کے ساتھ تعصب کیا جا رہا ہے۔ انڈسٹری بند کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ انجن بیٹھ گیا تو معیشت کو دھچکا لگے گا۔ جمع ہو گئے ہیں 21 جانی کی جو انڈسٹریل ایریا ہے ان کی جو لیبر ہے اس کی تعداد کتنی ہوگی، اور 21 انڈسٹریل اور یہ سب ایسوسیشن یہ اگر اسٹرائک کرے گی تو پورا آدھا پاکستان اسٹرائک سمجھو، 2 صوبے اسٹرائک کر دیں گے۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ جو ملک کے حالات ہیں اور ملک میں جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں کہ ہم کو اس قدم پہ یا اس چیز پہ ہم کو قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ اب ہم نے سوچا ہے کہ ہم اس آدمی سے بات کریں گے جو ڈیسیشن لے سکے۔ ہم سب کا پاکستان ہے اور ہم سب کو وہ فیصلے کر رہے ہیں جو اس ملک کے حق میں بہتر ہو۔ ہمارا جو پروگرام جس طرح ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم جو ہے پہلے بینرز لگائیں گے، تو ہم نے بینرز لگانے شروع کر دیے ہیں۔ آج بھی پریس کانفرنس کے اور آپ لوگ کے توسط سے فیڈرل کیبنٹ اور اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، جو 2 3 4 جانے، وہ ہم سے میٹنگ کریں اور دین اینڈ دیئر اس میٹنگ میں جب تک نہ اٹھیں جب تک کوئی صحیح فیصلہ نہ ہو، ورنہ انڈسٹری بند ہونی شروع ہو گئی ہے۔ تو میں آج میڈیا کے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ ہماری نیکسٹ پریس کانفرنس جو ہوگی اس کے اندر ہم باقاعدہ اسٹرائک کا اناؤنس کریں گے، جیسے کہ ہم نے کراچی چیمبر میں کہا تھا، اور اس میں ڈیٹ بتائیں گے، اور اس ڈیٹ کو انشاءاللہ پورا بلوچستان کی انڈسٹری، پورے انٹیریئر سندھ اور پورے کراچی کی انڈسٹری بند ہوگی، اور آپ سب دیکھیں گے کہ ایسی اسٹرائک پاکستان میں نہیں ہوئی ہوگی۔ صنعتکاروں کا بجلی کی قیمت مزید بڑھنے پر خدشات کا اظہار۔ آل پاکستان فوڈ ایسوسی ایشن کے صدر راشد صدیقی کہتے ہیں گیس کی قیمت میں دگنے اضافے کے بعد اب نومبر کے بجلی بلوں برداشت ہوگی۔ پیداواری لاگت میں اضافے سے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ حکومت کو فوری اقدامات کرنا ہوں گے۔ تفصیلات جانیں گے اشرف خان سے۔ صورتحال پر شدید کنسرنز دیکھے جا رہے ہیں، صنعتکار پریشان ہیں، بجلی ہو، گیس کے بل ہوں، وہ دیکھ کر ہی ہوائیاں اڑ گئی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کیا آگے ہوگا، یہ سوالات اٹھا رہے ہیں۔ یہاں پہ آل پاکستان فوڈ ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہمارے ساتھ موجود ہیں راشد صدیقی، ان سے جانتے ہیں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں، بزنس مین کیا سوالات اٹھا رہے ہیں۔ دیکھیں، بزنس مین سوالات یہ اٹھا رہے ہیں کہ کوئی 10 سے 15 سال کے بعد ایک بزنس مینوں کو اور صنعتکاروں کو ایک امید کی کرن جاگی تھی جب ہم لوگ چیف آف آرمی اسٹاف سے ملے تھے، اور انہوں نے ہم کو بہت ساری یقین دہانیاں کرائی تھیں، اور انہوں نے ایک بات یہ ہے کہ انہوں نے جو یقین دہانیاں تو کرائی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس وہ ساری ڈائنامکس موجود تھیں جن کا انہوں نے ہم سے ذکر کرا، اور جس کا انہوں نے ہم سے پھر وعدہ کرا کہ اب آپ دیکھیں گے حالات صرف اچھے ہوں گے۔ انہوں نے کہا تھا ڈالرائزیشن کے اوپر بھی ہم زیادہ تیزی سے کنٹرول کر رہے ہیں، اور ہم جتنی مہنگی بجلی آپ استعمال کر رہے ہیں اس کا بھی ہم کو احساس ہے، جتنا مہنگا آپ سود استعمال کر رہے ہیں اس کا بھی ہم کو احساس ہے۔ تو ہم ان تمام چیزوں پہ کام کر رہے ہیں، اور آپ کو ان تمام چیزوں کے اوپر بہت جلدی بڑی تیزی سے آپ کو اس میں امپرومنٹ نظر آئے گی، اور الحمدللہ ہم کو امپرومنٹ نظر آئی کہ ایک ہفتے بعد ہی ڈالر کے ریٹ بھی کم ہونا شروع ہو گئے۔ پھر اس کے علاوہ ابھی 2 مانیٹری پالیسی آئی، اس کے اندر بیس پوائنٹ کم سے کم اگر کم نہیں ہوا تو بڑھا بھی نہیں، لیکن اب ایک دفعہ پھر لوگوں کے اندر مایوسی آتی جا رہی ہے۔ وہ اس لیے آتی جا رہی ہے کہ ابھی جب آپ کی مانیٹری پالیسی آئی تھی تو اس میں ایکسپیکٹیشن تھی کہ کیونکہ انفلیشن کم ہوا ہے تو 1-2% سود کم ہوگا، لیکن وہ سود کم نہیں ہوا۔ پھر ابھی جو اس مہینے میں جو بجلی کے بل آئے ہیں اس کے اندر پچھلے 2 مہینے کا انہوں نے دوبارہ اس کا سرچارج لگا کے بھیج دیا ہے۔
फिर डॉलर जो बड़ी तेज़ी से नीचे आया था, उसके बाद दोबारा वो ऊपर जाना शुरू हो गया, अभी आजकल दोबारा फिर नीचे आ रहा है। एक बिजनेसमैनों के लिए, एक सनतकारों के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं होगी, और यही वो अनसर्टेनिटी होती है जो कारोबार की और सनतों की दीमक होती है, क्योंकि हमारी सनतें वैसे ही ज़बोहाली का शिकार हैं, बड़ी तेज़ी से डिक्लाइन की तरफ जा रही हैं, बड़ी तेज़ी से लोग बेरोज़गार हो गए हैं, बड़ी तेज़ी से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई हैं, लोगों की एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो गई है, लोगों की इम्पोर्ट डिक्लाइन हो गई है। जी, जैसे कि आपने सुना, शदीद कंसर्न्स आ रहे हैं और सनतकारों ने मुतालबा किया है कि हमें यकीन दहानी कराई गई थी कि बिजली गैस की कीमतें कम होंगी, शरह सूद में कमी होगी, लेकिन इस वक्त देखा जाए उल्टा उसमें इजाफा हो रहा है। यहाँ ऐसे इकदाम उठाए जाएँ जिससे पैदावारी लागत कम हो सके। जी, इंडस्ट्रियल जोन्स के साथ शहरी इलाके भी महंगी बिजली और लोड शेडिंग में इजाफे से परेशान हैं। ओल्ड सिटी एरिया मिल्लत नगर यूसी 4 में मौजूद सरकारी अफसरान भी बिजली की तवील लोड शेडिंग से परेशान हैं, जिनका कहना है कि मुसलसल 3-3 घंटों की लोड शेडिंग के बायस काम मुकम्मल करना मुमकिन नहीं। तफसीलात बताएंगी अक्सा शाहिद। ऑल सिटी एरिया ज़िला जुनूबी में मौजूद हूँ, जहाँ के इलाके मिल्लत नगर यूसी 4 में आपको बताएं कि जहाँ बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों की मामलात ज़िंदगी मुतासिर कर दी, तो वहीं जो सरकारी अफसरान हैं वो किस तरह जो है वो काम करते हुए मुतासिर हो रहे हैं और उनका काम किस हद तक मुतासिर होता है। यूसी ऑफिस में मैं मौजूद हूँ, इनसे बात करेंगे और जानेंगे। यहाँ पर स्टाफ मौजूद है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बिजली की लोड शेडिंग जो है वो यहाँ पर भी बरकरार है। जो सरकारी इमारत है, पंखा बंद है, लाइटें बंद हैं। सर ये बताइएगा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिजली की लोड शेडिंग पूरे इलाके में है, लेकिन जो सरकारी इमारत है और सरकारी अमला है वो किस तरह से काम करता है? सारी मकसद ये मैडम, ये बहुत मुतासिर हो रहा है। इधर सुबह 9 बजे से समझ लो 5 बजे तक होते हैं, तो 2.5-3 साढ़े 3 घंटे लाइट जाती है। इधर कोई इधर काम में बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। मकसद इधर जो भी आता है तो उसको गलत टाइम मकसद आते हैं तो बोलते हैं भाई, हम बोलते हैं कि बाद में आ जाना, तो वो फिर आते हैं तो फिर लाइट गई होती है तो वो डिस्टर्ब होते हैं, तो बदतमीजी करते हैं वो, तो इससे बहुत मुतासिर हो रहा है। ये बताइएगा कि कितने घंटे की लोड शेडिंग है? आपने बताया कि अगर 9 से 5 तक आपकी ड्यूटी है, तो कितने घंटे यहाँ पर लाइट होती है? भाई 3.5 घंटे 3 घंटे लाइट जाती है यहाँ पर एक टाइम पे। और कितनी दफा जा रही है? 5 दफा, 4 या 5 दफा जाती है। इस तरह जाती है। तो ये जो आप लोगों का काम है, निकाह नामे बनाना, डेथ सर्टिफिकेट बनाना, लिखत पढ़त का सारा काम है, और हम देखते हैं कंप्यूटर का भी इस्तेमाल है, फिर किस तरह से मैनेज करते हैं आप? जाहिर है मैनेज तो करना पड़ेगा ना। सरकार सोच ही नहीं रही है कि मकसद ये काम के अंदर मकसद सरकारी ऑफिस के अंदर मकसद डिस्टर्ब हो रहे हैं और उनको कोई एहसास ही नहीं है। बिल्कुल यकीनन सरकारी अमला भी जो है वो इस चीज़ से काफ़ी परेशान है। लोग आते हैं, क्लाइंट आते हैं, वो बदतमीजी भी करने पर जो है वो यहाँ पर बदतमीजी करते हैं और ये जो है वो कुछ भी नहीं कर पाते। एक वक्त में कम से कम 3 से 3.5 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है, जिसकी वजह से रान जो है वो उनका काम भी काफ़ी मुतासर हो रहा है। जी, आपको अपडेट करें कि गुलिस्तान जौहर में शॉपिंग मॉल में आतिशबाजी के वाक़े की तफ्तीश का सिलसिला जारी है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ईस्ट अमीर सऊद मगजी ने हादसा का दौरा किया और मुख्तलिफ पहलुओं से जायज़ा लिया। इस मौके पर उनका कहना था कि डीआईजी ईस्ट की सरबराही में कमेटी तहकीकात कर रही है। इस कमेटी में हमने एक इंजीनियर को भी शामिल किया है। इसके अलावा मुख्तलिफ इदारों को वाक़े से मुतालिक सवालात भेजे हैं, जो बात आने पर चीज़ें मज़ीद वाज़े होंगी। जल्द ही एक्सपर्ट्स और इंजीनियर्स के साथ इमारत का मुआयना किया जाएगा और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आपको बताएं कि कस्टम्स इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन की बड़ी कार्रवाई, कौमी ख़जाने को अंडर इन्वॉइसिंग करके करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचने का इंकशाफ, खाने के दरामदी तेल की मद में करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया। तफसीलात जानेंगे, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, अपडेट कीजिएगा। ये भी एफआईआर जो काटी गई कस्टम इंटेलिजेंस की इंफोर्समेंट की जाने से यहाँ पे जो तहकीकात हुई है कि जो इम्पोर्टर्स ने जो 3 तरीके से कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया, जिसमें देखा जाए कि आपने अंडर इन्वेस्टिंग की दरामदी माल पे, इसके साथ ही सेल टैक्स की चोरी की, और यहाँ पे एक अहम इंकशाफ हुआ है कि जो ये कंपनी बनाई गई थी ईडिबल ऑयल यानी वेजिटेबल ऑयल इम्पोर्ट कर रहे थे और यहाँ पे कंपनी प्रोसेसिंग मिल दिखाई थी। उस प्रोसेसिंग मिल की जगह एक फ्लैट में जो है एक इन्होंने जो है फैक्ट्री खोली हुई थी, जिसमें सिर्फ प्रोसेसिंग के बजाय से वो माल से ट्रांसफर करते थे। उसकी मद में सेल टैक्स की मद में भी कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा है। जो कस्टम इंटेलिजेंस ने जो तहकीकात की है, जो मुकदमा दर्ज किया है, उसमें जो चीजें इंकशाफ हुई हैं, बड़ा इंकशाफ हुआ है कि ये कंपनी ने मजमूई तौर पर अब तक कौमी खजाने को 25 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है और मजमूई तौर पर एक महीने में जो दरामदी वेजिटेबल जो बरामद किया गया था वेजिटेबल ऑयल, उसकी मद में जो मजमूई तौर पे जो है 6 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। यहाँ पे मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात की जा रही है और जो इनके साथ मुलविस थे, जिन लोगों ने अंडर इन्वेस्टिंग की है और जो कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा, उन लोगों के भी नाम जो है मुकदमे में दर्ज किया गया और तहकीकात की जा रही है और अदालत के सामने ये पेश किया जाएगा
और कहा गया कि जो कौमी खजाने को जो नुकसान पहुंचाया गया, कि सबसे बड़ा जो इशू उठाया गया अंडर इन्वेस्टिंग, जो माल मंगाया गया है तकरीबन $15 लाख का और दिखाया गया $9 लाख का, तो $6 लाख का जो बहुत बड़ा फर्क है उसकी मद में बहुत बड़ा फर्क है। अशरफ खान, बहुत शुक्रिया आपका। आम इंतखाबात से कबल आइन पाकिस्तान में 18वीं तरमीम में तब्दीली के लिए तमाम जमातों को यकजा करने का मिशन। MKM पाकिस्तान ने 18वीं तरमीम में तब्दीली के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। ज़िले खुद मुख्तारी आइनी जिम्मेदारी के उन्वान से मुनाकिदा सेमिनार में तमाम जमातों को ड्राफ्ट पेश किया जाएगा। तफसीलात जानेंगे, शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, अपडेट करें। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात से कबल जो है 18वीं तरमीम में तब्दीली के लिए तमाम जमातों को करने के लिए MKM पाकिस्तान जो है काफी मुतहरिक दिखाई देती है। MKM ने आईन पाकिस्तान की 18वीं तरमीम की तब्दीली के लिए जो है बाकायदा तौर पर ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। ज़राए MKM का कहना है कि MKM की जानिब से ज़िला खुद मुख्तारी आईनी जिम्मेदारी के उन्वान से कल मुनकिदा सेमिनार में तमाम जमातों को जो है ड्राफ्ट पेश किया जाएगा। MKM 18वीं तरमीम से मुतालिक जो है अपनी तजवीज़ और सिफारिशात तमाम जमातों को जो है कल पेश करने जा रही है। इस सिलसिले में कल कराची के मुकामी होटल में जो है एक सेमिनार का भी इनेकाद किया गया है। सेमिनार का इनेकाद किया गया है। शुएब मुख्तार, बहुत शुक्रिया आपका। पीपल्स पार्टी का सदन में सियासी जमातों से राब्तों का फैसला। आसिफ जरदारी की जानिब से तश्कील करदा कमेटी के अरकान मुलाकातें करेंगे। कमेटी के अरकान में निसार खोड़ो और सैयद गनी शामिल हैं। पीपल्स पार्टी का वफ्द MKM जमात इस्लामी ANP के रहनुमाओं से मुलाकात भी करेगा। आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। आजिज़, बताएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी हाँ, देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक वफ्द तश्कील दिया था, कमेटी बनाई थी सियासी जमातों से राब्तों के लिए। उसमें निसार अहमद खोड़ो, सईद गनी और दीगर रहनुमा थे। अब ये मालूम हुआ है कि ये इस कमेटी के अरकान इनमें मुख्तलिफ सियासी जमातों से रब्ते कर रहे हैं और जल्द सियासी जमातों से मुलाकातें करेंगे, जिसमें MKM है, जिसमें जमात इस्लामी है, ANP है, सिंध की कॉन्फ्रेंस जमातें हैं। इन तमाम जमातों से कमेटी जो है वो रब्ते करेगी और पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद और दीगर सियासी उमूर पर गुफ्तगू करेगी। दीगर सियासी उमूर पर गुफ्तगू भी की जाएगी। आजिज़ जमाली, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि जामिया कराची के शोबा फूड साइंसेस में गुर्दे की पथरी के इलाज के हवाले से अहम तहकीक जारी है। तफसीलात बताएंगे फरहान खान। मैं जामिया कराची के फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद हूँ। एक बहुत ही अहम तहकीक की जा रही है किडनी स्टोन और डायबिटीज के हवाले से। मज़ीद तहकीकात के हवाले से जानने के लिए हमारे साथ चेयरपर्सन फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन डॉक्टर शाहीना नाज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, मैम, इस तहकीक के हवाले से बताइएगा। असल में जिस डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं उसका बुनियादी मकसद ये है कि दुनिया भर में जो अब एक ट्रेंड चल पड़ा है कि दवाइयों के, क्योंकि बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट सामने आ चुके हैं, चाहे वो किसी मर्ज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए, चाहे वो दिल के अमराज हों, चाहे वो किडनी के अमराज हों, चाहे वो डायबिटिक को लेके हों। एक चीज़ ये सामने आई है कि अगर हम अपनी डाइट में कुछ ऐसी अशिया और ऐसे कुछ प्लांट सोर्सेज शामिल कर लें तो बहुत हद तक मुमकिन है कि हम इन बीमारियों का शिकार ही ना हों। तो हम जो है, जिसे एक आम ज़बान में हम एक इस्तेमाल करते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो हम उन प्लांट्स पे ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और अब तक हमारी रिसर्च ने ये साबित किया है कि वाकई में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में को बहुत ऐसे कुदरती वसाइल से नवाजा है और कुछ प्लांट स्पीशीज़ यहाँ पे ऐसी हैं कि जिनका अगर मुस्तकिल इस्तेमाल अपनी खुराक में किया जाए तो ऐन मुमकिन है कि आप इन बीमारियों पे काफ़ी हद तक काबू पा सकें। जी बिल्कुल, हमारे साथ चेयरपर्सन डॉक्टर शाहीना नाज हमारे साथ मौजूद थी। उनका ये कहना है कि अगर हम अपनी डेली रूटीन डाइट प्लान्स के अंदर ऐसी चीज़ों को शामिल करें तो इन जैसी डायबिटिक और किडनी स्टोन बीमारियों से बचा जा सकता है। जी।